Good morning, students. The next part of chemical bonding is bond angle, bond length, bond enthalpy, etc. These are the some different parts from this lesson. So, what is bond angle? Bond angle. मीथेन मॉलिक्यूल में, अमोनिया मॉलिक्यूल में, वाटर मॉलिक्यूल में हमने बॉन्ड एंगल देखे थे. The bond angle decreases from methane to water due to the presence of lone pair of electron. In methane, H dash C dash H bond angle is 109 degree 28 minutes. In ammonia, H dash N dash H bond angle is 107 degree 18 minutes. And in water molecule, the bond angle H dash O dash H bond angle is 104 degree 35 minutes. Okay. Now, what is the exactly definition of bond angle? The angle between the orbitals holding the bonding electrons is called bond angle. The angle between the orbitals holding the bonding electrons is called bond angle. Very simple definition. For example, the H dash O dash H bond angle in water molecule is 104 degree 35 minutes. Okay. So, that is the definition of bond angle. Angle between the orbitals holding the bonding electrons, it is known as bond angle. Okay. Now, define bond enthalpy. Bond enthalpy, यहाँ पर bond दिया है H dash O dash H. There are two bonds and the energy required to break such a bond, a particular bond, it is known as bond enthalpy. So, definition of bond enthalpy. Bond enthalpy is defined as bond enthalpy is defined as the amount of energy required to break 1 mole of bond of one type present between two atoms in a gaseous state. It is known as bond enthalpy. Bond enthalpy is defined as the amount of energy required to break 1 mole of bond of one type present between two atoms in gaseous state. It is known as bond enthalpy. Okay. Very simple definition. Now, explain bond enthalpy. Bond enthalpy in diatomic molecule and in polyatomic molecule. In diatomic molecule, the molecule containing two atoms, the bond enthalpies are identical. The bond enthalpies in diatomic molecules are identical, but in polyatomic molecules, the bond enthalpies are different. Of same type of bond, the bond enthalpies are identical in diatomic molecule, but in polyatomic molecules, the bond enthalpy in polyatomic orbitals are different of the same type of bond. Okay. यहाँ पर वाटर में देखो दो बॉन्ड है. कौन से बॉन्ड है? H dash O और H dash O. दोनों आइडेंटिकल बॉन्ड है. दोनों बॉन्ड सेम टाइप के हैं, लेकिन दोनों बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी अलग अलग लगती है. सो बॉन्ड एंथैल्पी. For diatomic molecules, the dissociation energy is the same as the enthalpy, as the bond enthalpy. For diatomic molecule, the dissociation energy is the same as bond enthalpy. Bond enthalpy of H2 molecule is 435.8 kilojoule. For the breaking of bond, energy is absorbed. जब कोई भी बॉन्ड ब्रेक होता है तब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, और कोई भी पर्टिकुलर बॉन्ड जब बनता है तब एनर्जी रिलीज होती है. फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड एनर्जी इज रिलीज, एंड फॉर द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड एनर्जी इज एब्जॉर्ब. मीन्स डेल्टा एच इज पॉजिटिव. बॉन्ड एंथैल्पी आर ऑलवेज पॉजिटिव. तो देखो एक्सप्लेन करना है हमें बॉन्ड एंथैल्पी. फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल the dissociation energy is the same as bond enthalpy. Bond enthalpy of hydrogen molecule is 435.8 kilojoule per mole. The bond enthalpy is the strength of bond between two atoms. Bond enthalpy का मतलब क्या है? वो बॉन्ड में जो स्ट्रेंथ होती है उसे कहते हैं बॉन्ड एंथैल्पी. The bond enthalpy is the strength of bond between two atoms and can be measured experimentally. और वो बॉन्ड एंथैल्पी एक्सपेरिमेंटली मेजर की जाती है. N dash N bond in N2 is stronger than O dash O bond in O2 because of नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है. इसलिए नाइट्रोजन बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर देन ऑक्सीजन बॉन्ड इन O2 मॉलिक्यूल.
N dash N bond in N2 is stronger than O dash O bond in O2. Larger is the bond dissociation energy, stronger is the bond. जितनी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लार्जर होगी उतनी बॉन्ड एंथैल्पी बॉन्ड एनर्जी कैसी होगी, स्ट्रॉन्गर होगी. लार्जर इज द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड. जितनी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लार्जर होगी उतना बॉन्ड कैसे होता है, स्ट्रॉन्गर होता है. ओके, नेक्स्ट फॉर हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल. हेट्रोन्यूक्लियर, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज अ होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल. दोनों एटम सेम है. ऑक्सीजन में दोनों एटम सेम है. नाइट्रोजन N2 containing both the atoms are same. O2 containing both the atoms are same. H2 containing both the atoms are same. But heteronuclear atoms, diatomic molecules, for heteronuclear diatomic molecule like HCl, हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों एटम डिफरेंट है. So that's why it is known as heteronuclear diatomic molecule. For heteronuclear diatomic molecule HCl, the bond enthalpy was found to be H dash Cl bond enthalpy कितनी है HCl में 431.0 kilojule per mole. Bond enthalpies are expressed in kilojule per mole. For heteronuclear diatomic molecule HCl, the bond enthalpy was found to be 431.0 kilojule per mole. In case of polyatomic molecule, अभी polyatomic molecule में bond enthalpy same नहीं होती. In case of polyatomic molecule, the bond enthalpies and bond dissociation energies are not same. Bond enthalpies and bond dissociation energies are not same in polyatomic molecules. Bond enthalpy is the average of the sum of bond dissociation energy. In polyatomic molecule, bond enthalpy is the average of the sum of bond dissociation energy. For example, अभी example देखो. Dissociation of water containing two bonds. Water is a polyatomic molecule, it containing 3 atoms. Poly means more than 2. So water containing 3 atoms, 2 hydrogen and 1 oxygen. So there are 2 identical bonds, O dash H, O dash H. Okay, so therefore dissociation of water molecule. पहला देखो H2O gaseous water molecule produces H gas plus OH gas. वाटर मॉलिक्यूल में 2 बॉन्ड है, उसमें से एक बॉन्ड ब्रेक कर दिया. ब्रेक करने के बाद हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन सेपरेट हो गया. हाइड्रोजन O डैश H बॉन्ड ब्रेक हो गया, H गैस बन गया और OH दूसरा बॉन्ड बाकी है ना. तो पहला बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी कितनी लग गई है देखो, प्लस 502 किलोजूल पर मोल. द O डैश H बॉन्ड एंथैल्पी फॉर फर्स्ट बॉन्ड इज 502 किलोजूल पर मोल. अगेन O डैश H बॉन्ड OH gas gives H gas gaseous atom plus O gas, and the bond enthalpy, second bond enthalpy for second bond is 427 किलोजूल. दोनों भी बॉन्ड एंथैल्पी सेम है या डिफरेंट है, अलग है. बॉन्डेड बॉन्ड सेम है, बॉन्ड आइडेंटिकल है. तो ऐसे पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए कौन सी बॉन्ड एंथैल्पी कंसीडर करनी है, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी कंसीडर करनी है. ओके, सो देयरफॉर two bonds are successfully broken but the bond enthalpy produced are different. First bond absorb how many energy? For the breaking of first bond, it absorbs how many energy? 502 kilojoule per mole. And for the breaking of second O dash H bond, it absorbs how many energy? 427 kilojoule per mole. So first bond requires more energy and second bond requires less energy. But for the breaking of two bonds, which bond enthalpy are taken for calculation? तो इन दोनों में से कैलकुलेशन के लिए कौन सी बॉन्ड एंथैल्पी लेनी है? एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी. देयरफॉर एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ O dash H bond in H2O is equal to delta AH. Delta AH means average bond enthalpy. It is equal to 502 plus 427 divided by 2. दो बॉन्ड है इसलिए 2 से डिवाइड करना है. सो एडिशन, इन दोनों का एडिशन करेंगे तो कितना मिल रहा है? 929 डिवाइड बाई 2. दैट गिव्स द एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी 464.5 किलोजूल पर मोल. Therefore, the enthalpies of 2O dash H bond in water molecule are different. The enthalpies of 2O dash H bonds in water are different. Therefore, in case of polyatomic molecule, the average bond enthalpy has to be considered. Polyatomic molecule में सेम टाइप के बॉन्ड होंगे तो एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी को कंसीडर करना पड़ता है. सो देयरफॉर एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ O dash H bond is 464.5 किलोजूल पर मोल. ओके, सो दिस इज बॉन्ड एंथैल्पी. अभी यहाँ पर बॉन्ड एंथैल्पी दी है, यहाँ पर एंथैल्पीज ऑफ सिंगल एंड डबल बॉन्ड, यहाँ पर साइन हो गया वो सिंगल है. एंथैल्पीज ऑफ सिंगल एंड मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड मीन्स डबल और ट्रिपल बॉन्ड. एंथैल्पीज ऑफ सिंगल एंड मल्टीपल बॉन्ड्स, तो यहाँ पर बॉन्ड दिए हैं,
कौन कौन से बॉन्ड दिए देखो, C डैश एच, N डैश एच, O डैश एच. सो C डैश एच की एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी 400 to 415 होती है. N डैश एच की बॉन्ड इंथैल्पी अप्रॉक्सीमेट दी है, एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी 390. O डैश एच की ये सभी वैल्यूज आपको टेक्स्ट बुक में दिए है, वो आप देखो. अगला पॉइंट लेता हूं मैं. ओके, अगला पॉइंट है डिफाइन बॉन्ड लेंथ. बॉन्ड लेंथ पहला देखा बॉन्ड एंगल, उसके बाद बॉन्ड एंथैल्पी, अभी बॉन्ड लेंथ. व्हाट इज बॉन्ड लेंथ? बॉन्ड लेंथ इज डिफाइंड एज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम्स इन अ मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल में जो न्यूक्लियाई जुड़े होते हैं वो दो न्यूक्लियाई के बीच में का डिस्टेंस, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, उसे कहते हैं बॉन्ड लेंथ. Bond length is defined as the equilibrium distance between the nuclei of two covalently bonded atoms in a molecule. It is known as bond length. Okay. So bond length यहाँ पर अलग अलग bonds दिए हैं. पहला देखेंगे Cl dash Cl bond length is smaller than Br dash Br bond length. explain करना है. क्लोरीन दो एटम जो क्लोरीन है उनकी बॉन्ड लेंथ स्मॉलर होती है Br से. तो क्यों होती है? तो उसका रीजन देखो यहां पर. बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन साइज ऑफ एन एटम. क्लोरीन एंड ब्रोमीन आर प्रेजेंट इन ग्रुप 17 एलिमेंट्स. ग्रुप 17 एलिमेंट्स आर नोन एज हैलोजेंस. ग्रुप 17 एलिमेंट्स, देर आर टोटली 18 ग्रुप्स, 18 vertical columns in the long form of periodic table, and the 18 vertical columns are known as group, and horizontal rows are known as periods. Okay, so there are 18 vertical columns in the long form of periodic table, they are also known as groups. So the elements present in group 17 the elements which are present in group 17 are known as halogens, and the halogens are fluorine, chlorine, bromine, iodine. As we move down the group in the modern periodic table, the size of an atom increases because of the shell increases. First shell कौन सा है? K. Second L, M, N, O. As we move down the group, the shell, there is an addition of new shell, and because of an addition of new shell, the size of an atom increases. As the size of an atom increases, the bond length also goes on increasing. साइज बढ़ने की वजह से बॉन्ड की लेंथ इंक्रीज हो जाती है. तो क्लोरीन का साइज, पहला कौन है? फ्लोरीन. 2 नंबर में है, पहला फ्लोरीन है, 2 नंबर को क्लोरीन है, 3 नंबर को ब्रोमीन है, 4 नंबर को आयोडीन है. तो साइज, सबसे साइज कम किसकी है? फ्लोरीन की. उससे ज़्यादा साइज किसकी है? क्लोरीन की. उससे ज़्यादा साइज किसकी है? ब्रोमीन की. और सबसे ज़्यादा साइज किसकी है? आयोडीन की. उसके बाद है एस्टाटाइन. तो क्लोरीन की साइज, एटॉमिक साइज कैसा है? द एटॉमिक साइज ऑफ क्लोरीन इज लोअर दैन ब्रोमीन. सो दैट्स वाई. तो रीजन यहाँ पर क्या है देखो, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस with increase in size of an atom. Cl atom is smaller than bromine atom, hence Cl dash Cl bond length is smaller than Br dash Br bond length. Very simple answer है. Okay, size increase होने की वजह से bond length increase होती है. Okay, so chlorine, the Cl dash Cl bond length is smaller than Br dash Br bond length. Okay, what is bond length? Bond length is defined as the equilibrium distance between the nuclei of two covalently bonded atoms in a molecule, that is known as bond length. यहाँ पर bond length दिए देखो, टाइप ऑफ बॉन्ड, कौन कौन से बॉन्ड दिए हैं? यह है O डैश H, C डैश H, N डैश O, C डैश O. ये बॉन्ड लेंथ ध्यान में रखो, कैलकुलेशन के लिए बॉन्ड लेंथ की वैल्यू दी है. कोवैलेंट बॉन्ड लेंथ पिकोमीटर में दिए हैं. टाइप ऑफ बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड लेंथ इन पिकोमीटर. ओके, वो भी टेबल आपको टेक्स्ट बुक में मिलेगा, यहाँ पर मैंने दिए हैं. ये टेबल भी आपको आज के होमवर्क में ड्रॉ करने हैं, बाकी सब जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो भी आपको लिखना है. ओके, सो बॉन्ड लेंथ मैं एक्सप्लेन नहीं करता, उसमें वक्त बच जाएगा. ओके, नेक्स्ट पार्ट, राइट शॉर्ट नोट ऑन बॉन्ड ऑर्डर. राइट शॉर्ट नोट ऑन बॉन्ड ऑर्डर. ओके, सो आंसर, अकॉर्डिंग टू द लीवाइस थियरी, bond order is given by the number of bonds between the two atoms in a molecule. देखो, कार्बन कार्बन इन अल्केन, अल्केन containing कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, अल्केन containing कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, and alkynes containing कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड.
सिंगल बॉन्ड की लेंथ ज़्यादा होती है, डबल बॉन्ड की लेंथ उससे कम होती है, ट्रिपल बॉन्ड की लेंथ उससे कम होती है. So, according to Levi's theory, bond order is given by the number of bonds between the two atoms in a molecule. Bond order दो मॉलिक्यूल के बीच में जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स होता है उससे उसकी बॉन्ड ऑर्डर डिटरमाइन की जाती है. अकॉर्डिंग टू लिवाइस थियरी, अकॉर्डिंग टू लिवाइस थियरी बॉन्ड ऑर्डर इज गिवन बाय द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल. फॉर एग्जाम्पल, in hydrogen molecule, bond order between hydrogen atoms is 1 as one electron pair is shared. देखो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन दो एटम के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं? दो इलेक्ट्रॉन. तो बॉन्ड ऑर्डर उसकी 1 है. बराबर है. ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं? दो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुए हैं, तो ऑक्सीजन की बॉन्ड ऑर्डर 2 है. डबल बॉन्ड बन गया मतलब बॉन्ड ऑर्डर 2. सिंगल बॉन्ड बन गया मतलब बॉन्ड ऑर्डर 1. एंड ट्रिपल बॉन्ड बन गया मतलब बॉन्ड ऑर्डर 3. ओके. सो इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन हाइड्रोजन एटम्स इन 1 and 1 electron pair, sorry, the hydrogen molecule, in hydrogen molecule bond order between hydrogen atoms is 1 as 1 electron pair is shared. हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बीच में, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में जो दो एटम हैं वो दो एटम के बीच में एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुआ है, इसलिए उसकी बॉन्ड ऑर्डर 1 है. इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल द बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन ऑक्सीजन एटम इज 2. क्यों 2 है? as 2 electron pairs are shared, because of in between two oxygen atoms there are 2 electrons are shared, so that's why the bond order of oxygen molecule is 2. In acetylene molecule, acetylene means CH triple bond CH. In acetylene molecule there are 3 electron pairs are shared between two carbon atoms. In acetylene molecule bond order between two carbon atoms is 3, because 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर शेयर्ड. कार्बन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं? 3 electron pairs are shared between two carbon atoms, so that's why the bond order in between two carbon atom is 3. So therefore isoelectronic molecules and ions have identical bond orders. Isoelectronic spaces means the spaces containing same number of electrons in its valence shell, that is known as isoelectronic spaces. Isoelectronic molecules and ions have identical bond order. Same bond order होती है मॉलिक्यूल, आइसोइलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल और आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयंस की बॉन्ड ऑर्डर कैसी होती है? सेम होती है. फॉर एग्जाम्पल, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ F2 एंड O-2 इज 1. देखो F2 की बॉन्ड ऑर्डर कितनी होगी? 1. और O-2 की 1, बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स टू प्रोड्यूस O-2 ऑक्साइड एनायन. फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? फ्लोरीन हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5. बराबर है. फ्लोरीन हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5, and fluorine molecule produces by the shared pair of 2 electrons between two fluorine atom. Unpaired electron from 2pz orbital of one fluorine atom and the unpaired electron of 2pz orbital of another fluorine atom combines, overlaps axially with each other to produce F' bond. और इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद हर फ्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स. ओके. टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए फ्लोरीन मॉलिक्यूल में? 10 इलेक्ट्रॉन्स. हर फ्लोरीन मॉलिक्यूल में 10. तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 8. ऑक्सीजन हैविंग एटॉमिक नंबर 8, 1s2 2s2 2p4. दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ऑक्सीजन एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद O-2 आयन बन जाता है. 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 1s2 2s2 2p6. सो इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ फ्लोरीन. So that's why F2 and O-2 are isoelectronic molecule and ion. So bond order of F2 and O-2 is 1. So bond order of N2CO and NO plus is 3. N2, because of these are isoelectronic species, molecules and ions. ये तीनों भी क्या है? N2 मॉलिक्यूल है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, और NO है, NO प्लस आयन है. इन तीनों की बॉन्ड ऑर्डर क्या होगी? 3 होगी, because of they containing same number of electrons. Okay, so the bond order of N2CO and NO plus is 3. As the bond order increases, the bond enthalpy increases.
बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होने के बाद सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी कम लगेगी, डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज़्यादा लगी, और ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज़्यादा लगेगी. सो एज द बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस, as the bond order increases, the bond enthalpy increases and bond length decreases. बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होने की वजह से बॉन्ड एंथैल्पी इंक्रीज होती है और बॉन्ड लेंथ क्या होता है, डिक्रीज होता है. ओके, सो दिस इज बॉन्ड ऑर्डर. अब यहाँ पर एग्जाम्पल दिए, देखो एग्जाम्पल, स्ट्रक्चर दिया है, टाइप ऑफ बॉन्ड दिया है, बॉन्ड लेंथ दी है और बॉन्ड एंथैल्पी दी है. बॉन्ड लेंथ नैनोमीटर में दी है. पहला एग्जाम्पल दिया है इथेन, दूसरा इथीन और तीसरा इथाइन. इथाइन मीन्स एसिटिलीन. सो इथेन कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड in between carbon, इथीन कंटेनिंग डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन, एंड इथाइन कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन. यहाँ पर हाइड्रोजन इथाइन में लिखना भूल गया हूँ मैं. सो H डैश C ट्रिपल बॉन्ड C डैश H. ओके, सो टाइप ऑफ बॉन्ड, इथेन में सिंगल बॉन्ड, इथीन में डबल बॉन्ड, इथाइन में ट्रिपल बॉन्ड. बॉन्ड लेंथ कितनी है देखो, सिंगल बॉन्ड होगा तो उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है, डबल बॉन्ड होगा तो बॉन्ड लेंथ कम होती है, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो बॉन्ड लेंथ उससे भी कम होती है. एज बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस. ओके, सो नैनोमीटर में बॉन्ड लेंथ कितनी है देखो, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की 0.154 नैनोमीटर, डबल बॉन्ड की कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है 0.134 पिकोमीटर, एंड ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है 0.120, सॉरी नैनोमीटर में दी है बॉन्ड लेंथ. कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड 0.154 नैनोमीटर, डबल बॉन्ड 0.134 नैनोमीटर, एंड ट्रिपल बॉन्ड 0.120 नैनोमीटर. ओके, और बॉन्ड एंथैल्पी दी है देखो, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी कम होगी, 348 किलो जूल में दी है. डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज़्यादा लगेगी, 612 किलो जूल, एंड ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज़्यादा लगेगी, 837 किलो जूल. ओके, सो दिस इज बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंथैल्पी. ओके, तीनों भी एक साथ दिए हैं. व्हेन, चौथा पॉइंट यहाँ पर, सॉरी उसमें 4 पॉइंट दिए हैं. व्हेन, इसी टेबल के ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेबल, व्हेन अनसैचुरेशन इंक्रीजेस बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस. अनसैचुरेशन मीन्स एज डबल और ट्रिपल बॉन्ड इंक्रीजेस, एज अनसैचुरेशन इंक्रीजेस बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस. बॉन्ड लेंथ देखो, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम है, इसलिए अनसैचुरेशन मीन्स the molecule containing double or triple bond, that molecules are known as unsaturated molecule. When unsaturation increases, bond length decreases. The stable compound is ethyne. ये इन तीनों में कौन सा कंपाउंड स्टेबल है? The stable compound is ethyne because higher bond enthalpy. क्योंकि इथाइन की बॉन्ड एंथैल्पी ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी कितनी है? ज़्यादा है. जिस मॉलिक्यूल की बॉन्ड एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होती है वो मॉलिक्यूल स्टेबल होता है. पहला पॉइंट क्या है पहला पॉइंट? अनसैचुरेशन इंक्रीज होने की वजह से बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होती है. व्हेन अनसैचुरेशन इंक्रीजेस बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस. ओके, द स्टेबल कंपाउंड इज इथाइन. इन तीनों में स्टेबल कंपाउंड कौन है? इथाइन है, बिकॉज ऑफ इथाइन हैविंग हायर बॉन्ड एंथैल्पी 837. दैट्स व्हाई इथाइन इज अ स्टेबल मॉलिक्यूल. द स्टेबल कंपाउंड इज इथाइन बिकॉज हायर बॉन्ड एंथैल्पी. एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंथैल्पी. तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंथैल्पी. लार्जर द बॉन्ड एंथैल्पी स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड. जितनी बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा होती है उतना बॉन्ड कैसे होता है? स्ट्रॉन्ग. लार्जर द बॉन्ड एंथैल्पी स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड. एंड लास्ट वन, एज बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस bond enthalpy, bond strength and stability increases. क्या? बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होने की वजह से, एज बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी इंक्रीजेस. ओके, ये 4 पॉइंट ध्यान में रखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और ये टेबल. ओके, नेक्स्ट वन इज एक्सप्लेन हाउ पोलैरिटी ऑफ आयोनिक कैरेक्टर, पोलैरिटी और आयोनिक कैरेक्टर is developed in covalent bond. How polarity, that is ionic character, polarity means ionic character, is developed in a covalent bond. covalent bond में polarity कैसे develop होती है? Explain how polarity, that is ionic character, is developed in covalent bond. So first point,
कोवलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म बिटवीन टू एटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स। दो एटम कंबाइन होने के बाद कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद बिटवीन टू एटम्स, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन टू एटम्स, it produces covalent bond. So covalent bonds are formed between two atoms of the same or different elements. When a covalent bond is formed between two atoms of same element, such as hydrogen hydrogen, fluorine fluorine, chlorine chlorine, etc., the shared pair of electron is attracted equally to both atoms. दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दो एटम मॉलिक्यूल में, कोवैलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल में दो एटम अगर सेम होंगे तो दो इलेक्ट्रॉन जो शेयर किए हैं वो दोनों इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे दोनों एटम के पास। व्हेन अ कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, when a covalent bond is formed between atoms of same element, such as hydrogen hydrogen covalent bond, fluorine fluorine covalent bond, chlorine chlorine covalent bond, etc., the shared pair of electrons is attracted equally to both the atoms. Such a covalent bond is known as non-polar covalent bond, because of in these molecules both the atoms having same electronegativity. What is electronegativity? Electronegativity की definition क्या है? The tendency of an atom to attract electrons, to attract shared pair of electron towards itself. The tendency of an atom to attract the shared pair of electron towards itself, it is known as electronegativity. अगर दोनों एटम सेम होंगे तो दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी, तो दोनों एटम इक्वली इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, इक्वली इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेंगे। हाइड्रोजन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही हाइड्रोजन ले जा सकता है? नहीं, दोनों एटम क्या कहेंगे, हम दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो बॉन्डिंग पेयर के दो इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन इक्वली तुम्हारे पास जाने दो, दूसरा इलेक्ट्रॉन मेरे पास आने दो, बराबर है। तो द मॉलिक्यूल्स व्हेन फॉर्म बिटवीन टू एटम्स, the two atoms in a molecule having same electronegativity, then the shared pair of electrons are equally distributed between the two atoms. Okay, next, when a covalent bond is formed between two atoms of different element, when a covalent bond is formed between two atoms of different elements that have different electronegativities, two different atoms having different electronegativity, जब दो अलग अलग एटम में कोवैलेंट बॉन्ड बनता है तो तब वो दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी या डिफरेंट होगी। तो इलेक्ट्रॉन्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए या अनइक्वली हो गए। तो इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन अट्रैक्ट कर लेगा? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लेगा, और जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लेगा उसके पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, और पार्शियल नेगेटिव चार्ज बनने की वजह से वो बॉन्ड जो है वो पोलर बन जाएगा। Okay, so once again, third point, when a covalent bond is formed between two atoms of different elements that have different electronegativity, the shared pair of electrons does not remain at the center. तब बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो सेंटर में नहीं होंगे। द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट रिमेन्स एट द सेंटर, द इलेक्ट्रॉन पेयर पुल टूवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर क्या हो जाएंगे? पुल हो जाएंगे, क्योंकि जो एटम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन पेयर खुद के पास खींच लेगा, बराबर है। सो द इलेक्ट्रॉन पेयर pull towards the more electronegative atom, resulting in the सेपरेशन ऑफ चार्जेस। उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास पुल होने की वजह से चार्जेस सेपरेट हो जाएंगे, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। दिस गिव्स राइज टू डाइपोल। डाइपोल मीन्स डाइपोलर, डाइपोलर चार्ज बन जाएगा, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। So partial positive charge is created on one atom and partial negative charge is created on another atom. तो partial negative charge किसके पास बन जाएगा? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उसके ऊपर partial negative charge, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसके ऊपर partial positive charge. This gives rise to dipole. The more electronegative atom acquire a partial negative charge and the less electronegative atom acquires partial positive charge. Such a bond is called a polar covalent bond. और ऐसा जब बॉन्ड बनता है तो उस बॉन्ड को कहते हैं पोलर बॉन्ड। सच अ बॉन्ड
it's called a polar covalent bond. The example of polar molecule are HF, HCl, H2O, NH3. तो यहाँ पर HF पहला मॉलिक्यूल दिया है, वो देखो H-F। हाइड्रोजन और फ्लोरीन, इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा कितनी है, किसकी है? पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स है और उस 118 एलिमेंट्स में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इज फ्लोरीन, दैट इज 4.1। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज 4.1, सो फ्लोरीन इज अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सो बिकॉज ऑफ दैट फ्लोरीन अट्रैक्ट्स द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। HF में जो बॉन्ड बना है वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन अट्रैक्ट कर लेगा? फ्लोरीन। इसकी वजह से फ्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज बन गया और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बन गया। ओके, सो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड प्रोड्यूसेस बाय HF, HCl, वाटर मॉलिक्यूल। इन वाटर मॉलिक्यूल ऑक्सीजन इज द सेकंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? फ्लोरीन। सेकेंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? ऑक्सीजन। तो वाटर में ऑक्सीजन ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और हाइड्रोजन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो वाटर में जो ऑक्सीजन है, दो लोन पेयर, दो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो हाईली अट्रैक्ट कौन करेगा? ऑक्सीजन करेगा। क्यों? बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन इज द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सो द पोलर मॉलिक्यूल प्रोड्यूसेस बाय मॉलिक्यूल्स HF, polar bond, polarity is produced. The examples of polar molecules are HF, HCl, H2 and NH3। NH3 में नाइट्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किससे? हाइड्रोजन से। इसलिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे होता है? पोलर होता है। ओके, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन हाइड्रोजन, therefore the shared pair of electron is more attracted towards fluorine and the atom acquires partial पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। इसलिए हाइड्रोजन और फ्लोरीन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज बन जाता है। फोर्थ पॉइंट, polarity of covalent bond increases as the differences in the electronegativity between the bonded atoms, between the two bonded atoms increases। पोलैरिटी इंक्रीज होती है जब दो कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम के बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। द पोलैरिटी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इंक्रीजेस एज द डिफरेंस in the electronegativity between the two covalently bonded atoms increases when the difference in electronegativity of combining atom is about 1.7 ionic percentage in the covalent bond is 50%। जब टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम के बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितनी होती है? 1.7 होती है, तो आयोनिक परसेंटेज इन द कोवेलेंट बॉन्ड कितना होता है? 50%। तब वो कोवेलेंट बॉन्ड क्या बन जाता है? आयोनिक। ओके, कितनी होनी चाहिए? अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा होगी तो वो बॉन्ड कोवेलेंट होता है, और नियर अबाउट 1.7 अगर होगी तो वो बॉन्ड कैसे होता है? आयोनिक होता है। फिर से देखो, व्हेन द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ combining atoms is equal to is about when the difference in electronegativity of combining atom is about 1.7 ionic percentage in the covalent bond is 50%। उस कोवेलेंट बॉन्ड में आयोनिक परसेंटेज कितने होते हैं? 50% होते हैं। ओके, सो दिस इज पोलैरिटी इन द मॉलिक्यूल। ओके, नेक्स्ट पार्ट है डाइपोल मोमेंट, हम वो कल देखेंगे। ओके, सो दिस इज द टुडेज पार्ट। थैंक यू।